ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ଏପଲ୍। ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜାଣିଛେ ରିଲାଏନ୍ସ, HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ, TCS, ଇନଫୋସିସ୍ ଏଇସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ। ତେବେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଏପଲ୍ ଠାରୁ ଛୋଟ ହେବେ। ତେବେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଏପଲ୍ କେମିତି ହେଲା? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ କୋଉ ବେସିସ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀକୁ ଛୋଟ ବା ବଡ଼ କହୁଛୁ। ତେବେ ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପ୍ କ'ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ମୁଁ ଏପଲ୍ଟି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଦୁନିଆର, ତ ଆମେ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ନାଁ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିଥିଲେ, ତାହେଲେ ସେଇ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରୁ ବଡ଼ ଛୋଟ ଏସବୁକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପ୍ ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେୟାର ପ୍ରାଇସ୍ 10 ଟଙ୍କା ଥାଏ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେୟାର ପ୍ରାଇସ୍ 1000 ଟଙ୍କା ଥାଏ। ତେବେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଦାମର ବା କମ୍ ଦାମର କମ୍ପାନୀଟି ଅଛି, କମ୍ ସେୟାର ବାଲା କମ୍ପାନୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମହଙ୍ଗା ବାଲା କମ୍ପାନୀ, ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରୁ ବଡ଼ କିଏ? ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଯେଉଁଟା 10 ଟଙ୍କା ଅଛି ସେ କମ୍ପାନୀଟା ବହୁତ ଛୋଟ, ଆଉ ଯେଉଁଟା 1000 ଟଙ୍କା ଅଛି ସେ କମ୍ପାନୀଟା ବହୁତ ବଡ଼। ତାହା ସତ କି ନା? ତେବେ ପ୍ରାଇସ୍ କମ୍ପାନୀ ସାଇଜ୍କୁ କେବେ ଡିସାଇଡ୍ କରିପାରେ ନାହିଁ। ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପ୍ ହେଉଛି ରିଏଲ୍ ମେଜର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପ୍ କ'ଣ। ତେବେ ବହୁ ଜଣଙ୍କର ଧାରଣା ଥାଏ ଯେ ସେୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ଯଦି ମହଙ୍ଗା ହେଲା ତାହେଲେ କମ୍ପାନୀଟି ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ଥିବ। ଆମେ କେବେ ବି ସେୟାର ପ୍ରାଇସ୍ରୁ କମ୍ପାନୀର ସାଇଜ୍କୁ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପ୍ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ମାପ। ତେବେ ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପ୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପ୍ର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି ସେୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଟୋଟାଲ ପ୍ରାଇସ୍, ଟୋଟାଲ ସେୟାର୍ସ। ତେବେ ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପ୍ର ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ଯେ ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସେୟାର୍ସ। ପ୍ରାଇସ୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ସେୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଏକ ସେୟାରର ବର୍ତ୍ତମାନର ମାର୍କେଟର ମୂଲ୍ୟ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀକୁ କିଣୁଛନ୍ତି ବା କମ୍ପାନୀର ସେୟାରକୁ କିଣୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଲେଖା ବାହାରିବ। ତାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି କରେଣ୍ଟ ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍। ଆଜିର ମୂଲ୍ୟଟାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି କରେଣ୍ଟ ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍। ସେୟାର୍ସ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ସେ କମ୍ପାନୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସେୟାରକୁ କୁହାଯାଏ ଟୋଟାଲ ସେୟାର। ତେବେ ଯଦି ସେ କମ୍ପାନୀର ସେୟାରର ପ୍ରାଇସ୍, ଗୋଟେ ସେୟାରର ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସେୟାରକୁ ମାଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେ କମ୍ପାନୀର ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରୁ ବୁଝିବା। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 100 ଟଙ୍କା, ଆଉ ସେ କମ୍ପାନୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସେୟାରର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 10,000। ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହେଲା? 100 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସେୟାର କେତେ? 10,000। ତେବେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ହେଇଗଲା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତେବେ ସେ କମ୍ପାନୀର ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲା 10 ଲକ୍ଷ। ତେବେ ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପ୍ କହିଲେ କ'ଣ? ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପ୍ କହିଲେ ହେଉଛି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାଲୁ। ସମସ୍ତ ସେୟାର୍ସର ମୂଲ୍ୟ ମିଶାଇ ହିସାବ କରିବାଟା ହେଉଛି ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପ୍। ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କମ୍ପାନୀର ଆକାର ଜାଣିବାରେ ସହଜ ହେଇଥାଏ। ଆମକୁ କମ୍ପାନୀ କେତେ ବଡ଼ କେତେ ଛୋଟ ଆମେ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ କୋଉଥିରୁ ଜାଣିବା? ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପ୍ରୁ ଜାଣିପାରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ହେଲ୍ପ ମିଳିଥାଏ। ଯେମିତି ଏହାକୁ କହନ୍ତି ପିଜା ଆନାଲୋଗି। ଯେମିତି ପିଜା ସାଇଜ୍ ମ୍ୟାଟର ନଟ୍ ସ୍ଲାଇସ୍ ପ୍ରାଇସ୍। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଛୋଟ ପିଜା ମହଙ୍ଗା ସ୍ଲାଇସ୍। ସେୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଧିକ ହେଲେ କମ୍ପାନୀ ବଡ଼ ଭାବିବା ଭୁଲ। ଛୋଟ କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥାଇପାରେ। ସେମିତି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ବଡ଼ ପିଜା କିନ୍ତୁ ଶସ୍ତା ସ୍ଲାଇସ୍। ତେବେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ଶସ୍ତା ହେଇପାରେ। ଟୋଟାଲ ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପ୍ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସାଇଜ୍ ଜାଣିବାର ଉପାୟ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ବୁଝିବା। ଧରନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ଏ ଅଛି ଆଉ କମ୍ପାନୀ ବି ଅଛି। କମ୍ପାନୀ ଏ ର ସେୟାର ମୂଲ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା ଆଉ କମ୍ପାନୀ ବି ର ସେୟାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଟଙ୍କା। ଧରନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ଏ ରେ ଥିବା ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସେୟାର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 100। ତେବେ ତାର ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପ୍ କେତେ ହେଇଗଲା? 10,000। ସେପରି ଭାବରେ କମ୍ପାନୀ ବି ର ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସେୟାର୍ସ କେତେ? 5,000। ତେବେ କମ୍ପାନୀ ବି ର ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପ୍ କେତେ ହେଇଗଲା? ଗୋଟେ ସେୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସେୟାର 50,000। ତେବେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ଏ ର ସେୟାର ଗୋଟେ ସେୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା 100 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲା କେତେ? 10,000। କମ୍ପାନୀ ବି ର ଗୋଟେ ସେୟାର ଭ୍ୟାଲୁ ଥିଲା 10 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଇଗଲା? 50,000। ତେବେ ଏଠୁ ଆପଣ ନିଜେ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ କମ୍ପାନୀ ବିଟା ହେଉଛି ବଡ଼, କେନେ ତାର ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପ୍ ଅଧିକ। ଯଦିଓ ତାର ସିଙ୍ଗଲ ସେୟାର ପ୍ରାଇସ୍ 10 ଟଙ୍କା, ତଥାପି ସେ କମ୍ପାନୀ ଏ ଠାରୁ ବଡ଼। ତେବେ ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପ୍ ହିଁ ହେଉଛି ସାଇଜ୍ ଜାଣିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ।
आसतु एक छोट आ गोटे एग्जांपल रियल एग्जांपल रे बुझिबा ए डाटाटी मोर पूर्वरु निया हितला जेबे मो पीपीटी बनैथिली आमे एठी कंपेयर करूचे यस बैंक आउ बंधन बैंक को तो यस बैंक रो जदी आमे करंट प्राइस देखिबा 20 टंका आ बंधन बैंक रो करंट प्राइस होची 185 टंका किंतु देखंतु ये छोट लागुची आपन को लागुथो यस बैंक को छोट कंपनी बंधन बैंक आपन को लागुथो गोटे बड़ कंपनी किंतु भूल जदी आमे यस बैंक रो मार्केट कैप देखिबा केते 64,000 कोटी टंका आउ बंधन बैंक रो मार्केट कैप केते 30,000 कोटी टंका तेबे आपण एबे निजे कहंतु किए बड़ कंपनी यस बैंक होची गोटे बड़ कंपनी जदिओ से प्राइस रे बंधन बैंक ठारू कम तथापि तारो मार्केट कैप अधिक थिबारु से गोटे बड़ कंपनी आपण जेतेले प्रथम प्रथम नवा स्टॉक मार्केट स्टार्ट करंती लोक छोट प्राइस देखिकी बा कम प्राइस देखिकी पेनी स्टॉक बहुत किणी पकांती किंतु भूली जानती जे से कंपनी पेनी नुहे से कंपनी बड़ भी हेई पारे तो मार्केट कैप को आमे निहाती देखिबा तो एठी मु छोट छोट टिके पॉइंट लिखि देइछि आपण जदि चाहेबे ताको पढी परिबे जे यस बैंक कोन करे वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक आ कोन करे सी ना फोकस ऑन कॉर्पोरेट एंड रिटेलर बैंकिंग सेमती बंधन बैंक विषय किछि लेखा आइछि स्टार्टेड एज ए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन फोकस ऑन रूरल एंड सेमी अर्बन बैंकिंग ए सब जिंस आगो को आसीबो सब विषय में पढिबा एबे खाली एति की बुझंतु जे यस बैंक रो प्राइस कम थाई कि मध्य बंधन बैंक ठारू से गोटे बड़ कंपनी केने ना तारो मार्केट कैप अधिक नेक्स्ट एग्जांपल जिबा ए होची क्वालिटी पावर आउ भेल रो एग्जांपल दी जण जाको गोटे सेम सेक्टर हां मु कहबा पई भूली गली जे देखंतु एठी जो मु कंपेयर करिछि ये भी गोटे बैंक ये भी गोटे बैंक आपण जतेले दुईटा कंपनी को कंपेयर करूछंती से दुई जण सेम सेक्टर रो हेइथिबा दरकार सेम सेक्टर माने कोन ये दुई जण बैंकिंग सेक्टर मु जदि गोटे बैंक सहित गोटे फार्मा रो कंपनी को कंपेयर करबी ताले सेटा भूल आमे जतेबे भी कंपैरिजन करबा स्टॉक को नै कि सेम सेक्टर रो हेइथिबा दरकार जेमति क्यू पावर और भेल ए सब इलेक्ट्रिकल सप्लाई रो मो माने कंपेयर करूछि देखंतु क्यू पावर जदि करंट प्राइस देखिबा एटा आज रे करंट प्राइस नुहे मु जेबे पीपीटी बनेइथिली तेबेरो 1380 टंका आ भेल रो करंट मार्केट प्राइस केते 352 टंका ते आपण देखुथिबे भेल रो प्राइस क्यू पावर टारू बहुत कम ताले मार्केट कैप टिके चेक करबा जे क्यू पावर मार्केट कैप केते 10,600 कोटी टंका आ भेल रो मार्केट कैप केते 1,22,711 कोटी ताटरू केते गुणा बड़ किंतु देखंतु प्राइस रे केते कम तेबे आपण माने गोटे मिथ रु दूरे रहंतु जे शेयर प्राइस टा कंपनी को बुझेइबो नाही जे से केते बड़ केते कम जदि गोटे महंगा शेयर भी हेई थाई पारे किंतु तार मार्केट कैप बहुत कम आ गोटे सस्ता आपण को फील हेई पारे किंतु तार मार्केट कैप बहुत बेसी ताले हमें क्यू पावर भेल विषय टिके सुन पढे देबा कोन लेखा है क्यू पावर कोन कोन लीडिंग प्लेयर इन पावर जनरेशन सोलार विंड थर्मल एंड हाइब्रिड सॉल्यूशन रिसेंटली ये 50% माने मूव देइछि रिसेंटली गोटे मंथ भितरे स्ट्रांग ऑर्डर बुक पैक्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स ए सब जिंस आगो हमें जीवा ए सब जिंस बहुत इंपोर्टेंट हमें धीरे धीरे पढिबा भेल विषय भी किछि लेखा आइछि तो एबे का टाइम रे हमें केवल मार्केट प्राइस आ मार्केट के विषय रे हमें बुझुछे तेबे बंधुगण क्यू पावर और भेल मध्य रे बड़ कंपनी की हे गला भेल हे गला जदियो ता प्राइस क्यू पावर टारो कम तेबे ए मार्केट कैप को बेस करी कंपनी मान को तीन भाग रे भाग करा जायछि लार्ज कैप मिड कैप आउ स्मॉल कैप लार्ज कैप काहा को कहबा ना जो कंपनी रो मार्केट कैप 20,000 कोटी रो अधिक ताको हमें कहबा लार्ज कैप मिड कैप काहा को कहबा ना जो कंपनी रो मिड कैप मार्केट कैप रो वैल्यू 5,000 कोटी रो 20,000 कोटी भितर थिबो ताको हमें कहबा मिड कैप कंपनी सेमती स्मॉल कैप कहिले कोन बुझिबा रॉकेट रो चिन्ह दिया आइछि नै कि रॉकेट हे जिवो से तो जो कंपनी रो मार्केट कैप रो वैल्यू 5,000 कोटी रो कम ताको हमें स्मॉल कैप कहबा तो लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप ताको विभिन्न माध्यम आम बुझा नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट कोटा भलो कोटा ट्रेडिंग भलो सब किछि आम जीवा कोन लेखा है हायर रिस्क कैन ब्रिंग हायर रिटर्न तेबे लार्ज कैप विषय टिके जानि रखिबा हमें लार्ज कैप कहले हमें जानिले जे 20,000 कोटी रु अधिक होइथिबा दरकार तार मार्केट कैप रो वैल्यू आउ लार्ज कैप कंपनी भारत रो सबुठु बड़ बड़ स्थिर कंपनी जो माने फास्ट आसीथिले इंडिया को स्टॉक मार्केट को से लार्ज कैप एबे हेइ जाइछन्ती प्रथम प्रथम जे माने आस्थिले तेबे ए लार्ज कैप रे इन्वेस्ट करले कोन हुए ना स्टेबल सेफ आउ स्लो ग्रोथ स्थिर निर्भर योग्य कम रिस्क सुरक्षित इन्वेस्टमेंट आउ ये किंतु धीरे धीरे वृद्धि करे तापर आसला मिड कैप काको कहबा मु कहली टिके आगरु जे जो
कंपनी रो मार्केट कैप रो वैल्यू 5000 कोटी रु 20000 कोटी हेतिबो ताको आमे कहबा मिड कैप कंपनी। तेबे ए मिड कैप कंपनी रो बैलेंस ग्रोथ सह स्टेबिलिटी थाए, मॉडरेट रिस्क थाए, या भलिया कम रिस्क नुह, ये मॉडरेट रिस्क, ना सेफ ना रिस्क, ये मध्यम धरणर। तो लार्ज कैप ठारू किंतु अधिक रिटर्न आमे पाई परिबा, मिड कैप टा लार्ज कैप रु अधिक रिटर्न देई थाए। लास्ट को आसिला स्मॉल कैप, जार मार्केट कैप रो वैल्यू 5000 कोटी रु कम। छोट कंपनी जो माने बाजार रे नुआ एमानकर वृद्धि संभावना बहुत अधिक थाए। सत कथा, जो कंपनी टी नुआ नुआ आस्तिबो तार जदि भलो ग्रोथ रहिला से आगु को जाई कि मिड कैप भी हेई जाय। तबे एथिरे रिस्क मध्य बहुत अछि, हाई ग्रोथ पोटेंशियल, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। केवल आपण हाई ग्रोथ पोटेंशियल टाकू देखिबे नाही, एठी गोटे लेखा हिची हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट, सेटा को भी देखिबे। हिडन जेम्स अवेलेबल, माने आमे आपको पढिबा एटा आमे खोजिबा को सिखिबा केमिति आमे हिडन जेम्स खोजिबा स्मॉल कैप को। तबे एठी देखंतु आजि जे स्मॉल कैप अछि से काली मिड कैप भी हेई जिवो। केमिति हेबो देखंतु ना, धरंतु गोटे कंपनी तार 5000 कोटी रु कम थिला, से स्मॉल कैप रे थिला, से धीरे धीरे तार स्ट्रांग बिजनेस देखैला, रेवेन्यू रे ग्रोथ हैला, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी बढ़ी गला, एक्सपांशन गला, मार्केट रिकग्निशन रे तार ना हे गला, से स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज 4 ते भीतर को हमको पसिबा नै। खाली एतकी बुझंतु जे तार मार्केट कैप 5000 कोटी रु बढ़ी 20000 कोटी को पड़ेला। आपण कहते मार्केट कैप केमती चेंज हो, आमे टिके पूर्व तार फॉर्मूला पढ़िथिले जे मार्केट कैप रो फॉर्मूला होची कोन, प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर कांस्टेंट थाय गोटे कंपनी रो, प्राइस किंतु फ्लक्चुएट हुए। गोटे वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष पर कोन सेम प्राइस रे मिलुथबो कि से शेयर टा नाही ना, प्राइस बढ़ी बढ़ी जीवो। तेणु प्राइस रो बढ़िवा सहित मार्केट कैप रो वैल्यू मध्य प्रत्येक दिन चेंज होउथाय। एटी कोन बुझिला हमें ना, ए गुड स्मॉल कैप टुडे कैन बिकम ए स्ट्रांग मिड कैप टुमारो। जदि आमे ए स्मॉल कैप कंपनी मध्यरु गोटे भलो कंपनी खोजी पारुछे, जदि से नेक्स्ट मिड कैप माने मिड कैप जेतेबेले हबो, आमर टंका भी से हिसाब रे ग्रो करिथिबो। 5000 रु 20000 कोटी जेतेबेले से पहुंची जिवो, आमर टंका भी से हिसाब रे पडिथिबो। तेबे हायर रिस्क हायर रिटर्न, एकटा हम आगुरु भी कहिथिले, अधिक रिस्क नेले अधिक रिटर्न मिलिबार संभावना थाए। लार्ज कैप रे कम रिस्क किंतु स्टडी रिटर्न आपण पाइबे, किंतु स्मॉल कैप रे अधिक रिस्क सह अधिक ग्रोथ पोटेंशियल थाए। तेबे लार्ज कैप लो रिस्क स्टडी रिटर्न, मिड कैप होची बैलेंस रिस्क एंड रिटर्न, स्मॉल कैप होची हाई रिस्क हाई रिटर्न। तेबे आमे करिबा कोन, मु कोन करिवि एज ए बिगिनर, मु कोन करिवि एज ए बिगिनर, आमे कोन करिबा। जदि आपण बिगिनर लार्ज कैप आपणको पई, जदि आपण नुवा इन्वेस्टर लार्ज कैप आरंभ करंतु, स्टेबल एवं सेफ रिटर्न पई या सर्वोत्तम। बैलेंस ग्रोथ जदि आपनको दरकार ताले आपण मिड कैप आडकू जिवे। ग्रोथ एंड सेफ्टी रे बैलेंस चाहुथिले मिड कैप चूज करंतु। मॉडरेट रिस्क सहित स्टडी ग्रोथ। एग्रेसिव एटा मु मना करिवि, एटा मना करी मु फास्ट बिगिनर मान को एटा मना करिवि। एग्रेसिव टा कहा पई, सॉरी स्मॉल कैप टा कहा पई, एग्रेसिव लोकन को पई। हाई रिटर्न्स चाहुथिले स्मॉल कैप रे इन्वेस्ट करंतु, रिस्क अधिक किंतु रिवार्ड मध्य अधिक। आमे याकू देखिबा नाही, आपण को मु कहूची बारंबार जे हाई रिटर्न्स को देखि कि आपण केबे भी स्मॉल कैप को दौड़ी जिवे नाही, कारण एठी लेखा हिची हाई रिस्क भी। तेबे मो हिसाब रे आपण तीनटा को मिक्स करंतु। मिक्स कइले कोन ना, लार्ज कैप रु किछि, मिड कैप रु किछि, आउ स्मॉल कैप रु किछि। तो लार्ज कैप रु धरंतु आपण किछि टंका इन्वेस्ट करिवार अछि, धरंतु आपण प्रत्येक मास बा 10000 टंका आपनको पाखरे अछि, आपण कोन करिवे तार टू 60% इन्वेस्ट करिवे लार्ज कैप रे, आउ 30% इन्वेस्ट करिवे मिड कैप रे, आउ 10% इन्वेस्ट करिवे स्मॉल कैप रे। माने रहिला 60 30 आउ 10। तो ये तीनटा को मिक्स करंतु। तेबे मु जो कहली लार्ज कैप मिड कैप आउ स्मॉल कैप, ए सबु का हमें जानिबा केमती बा हमें पाइबा कोठु ए सबु डाटा को ना, मु पूर्व क्लास रे गोटे वेबसाइट कहितली screener.in। आमे एटी को जिबा, एटी को गला परे को भी कंपनी धरंतु आपन को माइंड रे किछि भी कंपनी आसिला, जेमती आजाद इंजीनियरिंग कथा मु कहबी कंपनी विषय में जानिबार अछि। एबिका पई आमे कोन करबा ना, करंट मार्केट प्राइस एटा होछि करंट मार्केट प्राइस। ए शेयर रो वैल्यू केते 2315 टंका, आज रो वैल्यू देखौ एटा 2308 में रो वैल्यू केते 2315 टंका। आ मार्केट कैप केते एठी लिखा हिचे तळकू, मार्केट कैप रो वैल्यू होछि 14952। एबे मु क्यू पावर टिके पूर्वरु देखैथिली, तो क्यू पावर देखिबा, आज रो वैल्यू देखैबो एटा। क्यू पावर करंट वैल्यू केते 1200
68 टंका एटा होची शेयर ऑफ प्राइस मार्केट कैप केते 9821 सेमते हम यस बैंक रो भी देखि परिबा यस बैंक कोन यस बैंक रो करंट प्राइस केते करंट मार्केट प्राइस 22 टंका 9 पैसा मार्केट कैप केते 71955 आपन को जो कोनसी कंपनी विषय भी जानिबार अछि धरंतु गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स करंट मार्केट प्राइस केते 1042 टंका मार्केट कैप केते 1,06,000 ताले ये कौन हम लार्ज कैप ना मिड कैप हम ये ही जीवो लार्ज कैप हम स्मॉल कैप मिड कैप लार्ज कैप ये सब हम कंपनी विषय सर्च कर आपन को जो कंपनी विषय भी दरकार नॉलेज आपन नहीं पारिबे धरंतु बजाज कंज्यूमर केयर शेयर वैल्यू केते 546 किंतु कंपनी रो मार्केट कैप केते होची 7133 कोटी बुझी हला ताले आपनकर काम कोन आपन किछि किछि कंपनी को जाई कि तार मार्केट कैप को चेक करंतु तो मु गोटे पीडीएफ मो पाखे अच्छी आपण मानकु शेयर कर देबी एठी सब लार्ज कैप डाटाटा जून 2025 जाय अछि किछि टॉप 100 कंपनी को देखंतु लार्ज कैप हिसाब रे निया हिची तांकर मार्केट कैप एते लिखाइला प्रथम कोन अछि रिलायंस एचडीएफसी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ए सब अछि ता तडकू अछि रैंकिंग करा हिची टॉप 100 को निया हिची लार्ज कैप रे नेक्स्ट को निया हिची मिड कैप रे ए सब लिस्ट मो पाखरे गोटे अछि आपण खाली देखिबा पई इन्वेस्टमेंट पई नुहो एटा मु बारंबार कहूँ इन्वेस्टमेंट पाई नुह वो लर्निंग पर्पज पाई कहूँ ये देखो स्मॉल कैप रो भी लिस्ट अच्छी आपन चेक करि पारिबे जदि आपन एटा चेक करि करया पई चाहना ताले सिंपल screener.com को जानतु जो कंपनी विषय नॉलेज आपन को दरकार से कंपनी विषय आपन सर्च करि पारिबे तारिल धरंतु 325 टंका करंट मार्केट प्राइस होची 9700 सॉरी मार्केट कैप होची 9749 कोटी तेबे या भितर नेक्स्ट हमकु नेक्स्ट जो रेशियो सब करंट प्राइस हमें एबे दुईटा ही कथा बुझीछे जे शेयर कहिले कोन आउ शेयर मार्केट कहिले कोन आउ मार्केट कैप कोन ए दुईटा क्लास रे हमें एतिकी हमें आईपीओ भी बुझीछे तेबे नेक्स्ट हमें जीवा ए सब वैल्यू को स्टॉक पी कहिले कोन आरओसी कहिले कोन आरओई कहिले कोन ए सब टिके टिके हमें बुझीबा को जीवा नेक्स्ट क्लास रे हमें सब बुझीबा तेबे आमे एबे बुझी गले जे मिड कैप स्मॉल कैप आउ लार्ज कैप कोन आमे इन्वेस्ट केमिति करबा नेक्स्ट रे आमे स्टॉक केमिति चूज करबा पी रेशियो कोन ए सब जिंस को बुझीबा तो नेक्स्ट क्लास रे म आपन मानकु पई नै आसीबे से सब रेशियो गुडा आउ जदि आपन को मार्केट कैप विषय रे बुझी हला बा आपन टिके भी क्लियर हेइ छंती और जदि किछि डाउट अछि ताले कमेंट करंतु जदि बुझी हेछि ताले एम कैप लिखि कि कमेंट करंतु मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु धन्यवाद।